student. Today we are going to study our next chapter, that is metal and non-metal. Everything near around us. Okay, जितनी भी चीजें अपने आसपास है वो किसकी बनी हुई है? That is made up of metal or non-metal. Okay, so till the date at the present the scientists or 118 elements are discovered. Okay, मतलब इनके बारे में पता कर लिया है, जिसमें से 92 नेचुरली हैं और बाकी क्या करे गए हैं, लैब में बनाए गए हैं. ओके, 92 आर नेचुरल एंड द रिमेनिंग आर formed in a lab. After that, this everything is divided into metal and non-metal. So they are having a different properties. They are having a different properties. Means they are divided according to physical properties and chemical properties. Physical properties means आप उसको देख के बता सकते हो कि ये metal है या non-metal. और chemical properties में how they react, उसके according क्या करते हैं अपन जानते हैं कि ये क्या है, metal है या non-metal. So first we will study physical property of metals and non-metal. Physical properties of metal and non-metal. Physical property देखो, अब ये क्या होता है, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, these all things come under a metal, and like carbon, oxygen, these things come under a non-metal. After that, now see, when you will see a iron or you will see a gold, so what you will see, what you will find in them, that they are lustrous. Lustrous means क्या होता है, चमकीला, shine. They are having a shine. Okay, they are having a shine. After that, good conductor, they are the good conductor of electricity. They are the good conductor of electricity. And when we will study about the chemistry, there are some exception case. ठीक है ना, some exception case होते हैं जो नॉन मेटल होने के बाद भी क्या होता है, नॉन मेटल होने के बाद भी वो शाइनिंग रहते हैं. After that, second, they are strong and hard. When you see they are strong and hard, when you have seen the iron, okay, you have seen the iron, it is strong. When you have seen the iron, it is strong. You have seen the zinc, you have seen the copper, many metals you have seen, and that all things are hard. So we can say they are strong and hard. After that, sonority. Sonority means होता है अपने खनक की आवाज. ठीक है, आप किसी भी चीज को अगर आप मेटल को बीट करोगे, ठीक है, अगर आप क्या करोगे, मेटल को बीट करोगे तो वो कैसे होने वाली है, वो मेटल की आवाज खनकती है. ठीक है ना, और जैसे आपने बेल, रिंगिंग बेल की साउंड सुनी होगी, अगर आप टेंपल में गए हो तो जो बेल की आवाज होती है, तो जो साउंड होती है, दैट इज sonority. तो दैट कम्स only in metal, not in a non-metal. So this property is also present. इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है. दे कैन नॉट बी इजीली मेल्ट. तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई होता है. आफ्टर दैट मैलेबल, ये क्या होते हैं, डक्टाइल, मैलेबल. तो गुड कंडक्टर जितने भी अपने आसपास या सीन द वायर, तो वायर के अंदर क्या होता है, ऊपर तो वो कोटिंग रबर की करते हैं, बट अंदर क्या होता है, वो जिंक या कॉपर वायर वो लगाते हैं. क्या करते हैं, कॉपर वायर की फिटिंग होती है. सो व्हाट हैपन इन दैट, व्हाई दे यूज दिस कॉपर वायर, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड आफ्टर दैट व्हेन यू विल सी, और उनमें भी क्वालिटी क्या रहती है, जैसे डक्टाइल. तो डक्टाइल में क्या होता है, बहुत पतली तार में these metals can be converted into thin wire. This metal can be converted into thin wire. मतलब बहुत पतली से पतली वायर. आपने गोल्ड, सिल्वर, these are changed into thinnest wire. मतलब बहुत पतले वायर में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. तो उनमें ये डक्टाइल प्रॉपर्टी भी रहती है. और मैलेबल में क्या होता है, मैलेबल में these change into foil. मतलब एकदम पतली सी शीट में वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. यू ऑल हैव सीन द एल्यूमिनियम फॉइल. आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखी है तो देखा होगा वो कितनी एकदम पतली है. तो इनको में ये जो प्रॉपर्टीज रहती है, these physical properties can be find only in a metal only. These properties we cannot find in a non-metal. ठीक है ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो गई उसमें, हार्ड, स्ट्रॉन्ग हो गया, वो बहुत ज्यादा तत्व, बहुत हैवी मटेरियल बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है. लस्ट्रस मीन्स होता है चमक, शाइन रहती है. तो इसमें जब शाइन रहती है तो उनको ऑर्नामेंट, ज्वेलरी बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, एक या दो चीज को, जैसे सोडियम पोटेशियम को छोड़ के, बिकॉज दे कैच द फायर
जो सोडियम और पोटेशियम रहता है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी फायर को क्या करता है, कैच करता है, तो इट कैच द फायर वेरी इजीली। आफ्टर दैट मैरिबिलिटी होता है, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर, तो these are the physical property which are present with by seeing this property we can say that this element is a metal. After that non metal, लो मेटल में क्या होता है, नॉन लस्ट्रस, इनमें चमक नहीं होती है, ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड, ओके, एक्सेप्ट डायमंड। आफ्टर दैट बिटर मींस इट इज नॉट सो हार्ड, ये बहुत सॉफ्ट रहता है, ये क्या रहता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं नॉन मेटल। लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो भी बहुत ज्यादा कम रहता है, बहुत कम रहता है। इसके बाद ये भी डक्टाइल, दे कैन नॉट बी चेंज इनटू थिन वायर, दे कैन नॉट बी चेंज इनटू थिन शीट। आफ्टर दैट थिन शीट के बाद दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दीज आर द थिंग्स, और इन सब में भी क्या होंगे, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे बोला हार्डेस्ट सब्सटेंस, जो नॉन मेटल में डायमंड ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसके अलावा सारे क्या रहते हैं, मतलब जो डायमंड है उसमें कुछ क्वालिटीज, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी रहती है जो क्या होती है, मेटल से मैच करती है, बट दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन, दैट्स व्हाई इट कम्स इन नॉन मेटल। Okay, so these are the physical properties, means when you see the things you will find that you will find these things इन एलिमेंट्स के, ये एलिमेंट में ऐसा ही ऐसा है, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग मेटल्स रहते हैं, उसके बाद इनकी रिएक्टिविटी सीरीज भी रहती है, इनकी क्या रहती है, रिएक्टिविटी। कुछ मेटल्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव रहते हैं, और कुछ मेटल्स रहते हैं जो बहुत लीस्ट रिएक्टिव रहते हैं। ओके, सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। Now, what we have studied, we have studied about the physical property that by seeing anything, okay, physically देख के आप क्या कर सकते हो, किसी चीज को आप बता सकते हो। Now we will study about the chemical property. Chemical property means you can say a chemical reaction when any substance react and create a new substance, ठीक है। तो क्या होता है, कोई substance किसी और चीज के साथ मिलता है और नई चीज को बनाता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, chemical reaction भी बोल सकते हैं। Now we will study chemical property. सबसे पहला है कि जो ये मेटल्स हैं किसके साथ मिक्स हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होते हैं। सो मेटल टेंड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। तो क्या फॉर्म करते हैं वो, बेसिक ऑक्साइड। यू हैव सीन द कॉपर, ठीक है, एवरीवन हैज सीन द कॉपर। तो कॉपर में देखा होगा कि ब्लैकिश या ब्राउन, रेड ब्राउनिश लेयर जो बन जाती है, अजीब सी ब्लैक ब्लैक टाइप का। आपका जो नया बर्तन, जो न्यू यूटेंसिल आया होता है कॉपर का या एनीवेयर से यू हैव सीन, सो व्हाट हैपन दैट मेटल रिएक्ट विद oxygen, that metal react with the oxygen and form a metal oxide. So see what happened, here we will study one equation 2Mg, ठीक है ना। So magnesium means metal, magnesium जो है वो metal है that reacts with oxygen, okay, metal that reacts with oxygen and form a metal oxide. So 2Mg plus O2 gives you or reacts and forms a 2MgO, okay, 2MgO को वो form करता है। Now this metal oxide and after that this magnesium burn, ठीक है ना। जब ये क्या होता है, मैग्नीशियम बर्न होता है, सो व्हेन इट्स बर्न, सो इट जस्ट गिव यू अ डेजलिंग लाइट, मींस जैसे व्हेन यू हैव सीन अ क्रैकर, ठीक है ना, क्रैकर या जो फुलझड़ी होती है वो जलते हुए वो जैसे चमकती है, जलती है, सिमिलरली क्या होता है यहाँ पे वो सेम लाइट को शो करता है। व्हेन दिस मैग्नीशियम बर्न इट शो अ डेजलिंग लाइट। आफ्टर दैट मैग्नीशियम एंड रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है ना। मैग्नीशियम क्या होता है, जब पानी के साथ भी O plus H2O, then it gives you Mg हाइड्रो ऑक्साइड, ओके, बेसिक ऑक्साइड। सो ये क्या बन गया, वहां पे वो एसिड था एंड इट फॉर्म अ बेस, ठीक है, ये एसिड था और इट फॉर्म अ बेस। नाउ सेकंड सोडियम, मैंने कौन सा मेटल लिया, सोडियम। तो सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन वेरी इजीली। ये जो सोडियम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कि यू कैन नॉट, मतलब आप रूम टेम्परेचर पे इसको खाली नहीं छोड़ सकते, बिकॉज इट कैच द फायर वेरी इजीली। सो वी हैव टू कीप द सोडियम इन अ केरोसिन ऑयल, ओके। तो इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, सो इट कैन नॉट कैच द fire very easily. After that, the reaction property of it is that four molecules of sodium reacts with oxygen
gives you sodium oxide. So 2Na2O. And what happens? There are two type of equation: balance equation and unbalanced equation. So then these balancing equation and balanced equation you will study in your higher classes. First you have to know that these are the equation, and after that second thing that we have taken zinc 2ZNA plus oxygen that gives you 2ZnO, means zinc oxide, that gives you zinc oxide. And there are many metals that are there are many metals which do not react with the oxygen, like gold, platinum, silver. They are the high reactive metals, so they do not react with oxygen. Now gold, जैसे gold हो गया, after that they are जो metals है वो इतने अच्छे मतलब वो रहता है, इसमें ऑक्सीजन का इफेक्ट नहीं होता. ओके, दिस मेटल आर ऑन द अदर आर हाईली अनरिएक्टिव. ऑन द अदर हैंड जैसे गोल्ड अभी आपको बताया, जिंक के बारे में बताया और उसके बाद सोडियम के बारे में बताया. तो ये जो मेटल्स है दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड. बट जो गोल्ड रहता है वो क्या रहता है? अनरिएक्टिव मेटल. So the gold is unreactive matter, so it do not react easily. Actually it do not react easily, that's why it look used for a long time. ठीक है ना, वो नया सा जो दिखता है, न्यू लुक जो उसमें बना रहता है, looks new for a long time because it do not react with oxygen or any other gases. Now we will study about the non-metal. Non-metal सबसे पहले किससे reaction with oxygen. How the non-metal react with oxygen and form a acidic oxide and form a acidic oxide. For example, carbon. Carbon is a non-metal. Carbon reacts with oxygen and gives you CO2. That is carbon dioxide. Carbon reacts with oxygen gives you CO2. That is carbon dioxide. And here, when this carbon dioxide reacts with water, CO2 reacts with water means H2 and gives you H2CO3. And this is a balance equation. And this is a balance equation. Means carbon dioxide reacts with water and give you carbonic acid. When carbon dioxide reacts with acid and gives you carbonic acid. And one more, that is nitrogen. So nitrogen reacts with oxygen and gives you nitrates. Nitrogen reacts with oxygen and gives you nitrates. Now we will study about the अभी क्या पढ़ा था पहले? Reaction with oxygen of metal. Now we will study reaction with water. ठीक है, reaction of metal with water. We will study metal reaction with water. Metal reacts with water to form hydroxide. The metal reacts with oxygen and form oxide. Now metal reacts with water and to form hydroxide or metal oxide and hydrogen gas. ठीक है ना, जब वो metal react करता है इससे पानी से, तो वो क्या होता है? और जो ये मेटल रहते हैं, देखिए react, some metal react with cold water, some metal react with hot water and some metal react with steam also. तो it depends on the metal reactivity. ठीक है ना, उनकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल यूज कर, कौन सा मेटल है. After that, first metal we will take 2 K's here. It is the potassium. When potassium reacts with water, then it's form a potassium hydroxide and this H2 is hydrogen gas and heat. ठीक है, ये क्या है आपका 2K means यहाँ पे हो गया आपका potassium reacts with water and gives you potassium hydroxide. Potassium hydroxide, and this is the sign, it is a hydrogen gas. It is a hydrogen gas and that is a heat. After that, magnesium oxide. So जो magnesium oxide है, magnesium, okay, magnesium reacts with water and gives you this. Is it 2K plus 2H2O then 2KOH plus H2 plus heat. Similarly, magnesium Mg plus H2O then MgO means magnesium oxide and hydrogen gas. Magnesium oxide and hydrogen gas. Then we take another zinc. After that, Zn means zinc, H2O water, and ZnO means zinc oxide and hydrogen gas. Okay, zinc oxide and hydrogen gas. After that, the copper do not react. Okay, copper do not react with water. First, अभी क्या पढ़ा था अपन ने? Reaction with water. There are some metals like gold, silver, platinum. They do not react with water. They are good. जो उनकी ये जो क्वालिटी रहती है उसके कारण उनको ornaments, ज्वेलरी, ये सारी चीजें बनाने में उनको यूज किया
जाता है द प्लैटिनम, उसको तो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बनाने में भी उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो देयर आर सम मेटल दैट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दैट्स व्हाई द पोटेशियम इज आल्सो non-metal do not react and non-metal do not react with water. non-metal होता है वो क्या नहीं होता है, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करा जाता, इसलिए फॉस्फोरस को पानी में स्टोर करते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर आल्सो। आफ्टर दैट we will study reaction with acid. Okay, reaction with acid matter of reaction with acid form salt and hydrogen gas, ठीक है। मेटल रिएक्शन विद एसिड, कोई भी मेटल है वो किससे मिलता है, जब एसिड से मिलता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अभी क्या हो रहा था, ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग ऑक्साइड, देन वाटर, देन हाइड्रो ऑक्साइड। नाउ व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। नाउ जिंक एसिड को आपने किससे मिक्स करा, सल्फ्यूरिक सल्फेट से। किससे मिक्स किया, सल्फ्यूरिक सल्फेट से, देन इट गिव्स यू जिंक सल्फेट, it gives you zinc sulfate and hydrogen gas. So Zn plus H2SO4, ZnSO4 plus hydrogen gas, और ये क्या होती है, वेपर। ओके, ये गैस फॉर्म में हो सकती है। आफ्टर दैट मैग्नीशियम sulfuric acid, magnesium sulfate and hydrogen gas, magnesium sulfate and hydrogen gas। तो इसमें क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, रिएक्ट करती हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को देती हैं। जो कॉपर है, कॉपर ओनली रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, ओके, इट डू नॉट रिएक्ट विद एंड जब वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो कोई भी हाइड्रोजन गैस उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। Now we will study about corrosion of metal. Here the definition is given. This process of metal reacting with oxygen present in the air, causing it to deteriorate, means यहाँ पे इसको खराब करना, ठीक है। The process कि किसी भी metal को, you have seen the rusting. Okay, what you have seen? You have seen the rusting means iron पे जो जंग लगी हुई रहती है उसको क्या बोला जाता है, rusting. So when iron is left down in a air for a long time, ठीक है, if you have seen the benches in a garden or anything else, so what you have seen कि वहाँ पे वो थोड़े टाइम बाद रखे उस पर एक फ्लेक्स टाइप, मतलब एक लेयर जम जाती है। तो वो लेयर कैसे बनती है, जो आयरन मेटल है वो क्या रिएक्ट करता है, वाटर एयर के साथ, ठीक है। एयर और जो मॉइस्चर है इसके साथ रिएक्ट करता है एंड देन इट फॉर्म आयरन ऑक्साइड। सो वो आयरन ऑक्साइड को फॉर्म होती है, तो उसमें क्या होता है, जो रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको क्या बोला जाता है, रस्ट। व्हाट वी से दैट, रस्ट। ओके, तो वो रस्ट फॉर्म होती है, जो प्रोसेस होता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन इज कंबाइनिंग with oxygen and moisture, okay, iron is combining with oxygen and moisture and form a hydrated iron oxide or rust। इसको क्या बोल सकते हैं, iron oxide or rust, okay, क्या बोला जाता है इसको, iron oxide or rust। I'm going to explain you once again। जब आयरन होता है, everyone has seen the iron, तो आयरन में क्या होता है, एक लेयर होती है, ठीक है, वो क्या होती है, लेयर बनती है, फ्लेक्स टाइप की लेयर बनती जाती है। डेब्यू हैज सीन ब्राउनिश कलर, आप कोई भी नेल देख लीजिए, कोई भी चीज जो बहुत लंबे टाइम से क्या हुई है, हवा में रखी हुई है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट इज केप्ट इन एयर एंड मॉइस्चर, सो दैट रिएक्ट विद iron and it form a iron oxide. Next, copper. Okay, next क्या ले रहे हैं अपन, copper. Everyone have seen the copper. So copper and air for a long time react slowly with carbon dioxide. Okay, copper इसमें क्या हो रहा था, वो air से, iron किससे react कर रहा था, air से कर रहा था, but copper react with the carbon dioxide and water of air, and जो हवा में पानी है उसके साथ react करता है and it form what it form, it's form a copper hydroxide and copper carbonate. It forms a copper hydroxide, copper hydroxide and copper carbonate। क्या फॉर्म करता है वो, copper carbonate। तो जो कॉपर है उस पे भी ग्रीन कलर की कोटिंग, ठीक है, आयरन पे रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग होती है और कॉपर पे ग्रीन कलर
होती है। ओके, एंड आफ्टर दैट लास्ट सिल्वर। सिल्वर में क्या होता है, गोल्ड डू नॉट फिट, ठीक है। सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर में भी ब्लैकिश कलर की, ठीक है, किस कलर की ऑक्साइड, किस कलर की लेयर बन जाती है, ब्लैक कलर का कवर हो जाता है। दिस हैपन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड लेयर ड्यू टू द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोसल्फाइड प्रेजेंट इन द एयर। तो ये किसके कारण होता है, हाइड्रोसल्फाइड, तो किस में प्रेजेंट है, हाइड्रोसल्फाइड किस में प्रेजेंट है, इन द एयर, इट इज प्रेजेंट इन द एयर। और ऑन द करोजन व्हाट इट हैपन, इट जस्ट हार्म द मेटल, ठीक है ना। वो क्या है, जैसे रस्टिंग हो रही है तो जो आयरन है उसकी भी लाइफ क्या हो रही है, कम हो रही है। सिमिलर विद कॉपर एंड सिल्वर आल्सो। आफ्टर दैट हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम दिस, ओके, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम करोजन, हाउ अपन इसे कैसे बच सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, जितनी भी लोहे की चीज रहती है उनमें पेंट होता है, पेंट, ग्रीस, ऑयल कैन बी अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, जो भी मेटल है उसकी सरफेस पे क्या हो जाएगा, पेंट, ग्रीस, ऑयल हो जाएगा। दिस एक्स्ट्रा लेयर, जो उनके ऊपर एक लेयर बन जाती है, वो एक्स्ट्रा लेयर क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। जो एक्स्ट्रा लेयर है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है मेटल्स को फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर। आफ्टर दैट कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक, ठीक है ना। आयरन के ऊपर किसकी लेयर लगा देते हैं, जिंक की लेयर लगा दी। आयरन के ऊपर किसकी लेयर आ गई, जिंक की। ऑब्जेक्ट प्रिवेंट करोजन, दिस प्रोसेस, वो एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर लगाना, एक मेटल के ऊपर किसकी लेयर लगाना, दूसरे मेटल की लेयर लगाने को क्या बोला जाता है, वैल्यूनाइजेशन। क्या बोला जाता है इसको, गैल्वेनाइजेशन। दिस एक्स्ट्रा लेयर जिंक डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन, ठीक है ना। जो एक लेयर बन जाती है एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की जब लेयर बन जाती है तो वो क्या करता है, करोजन, मतलब डायरेक्ट एयर मॉइस्चर की लेयर नहीं, आयरन मॉइस्चर से मेटल रिएक्ट नहीं करता है तो करोजन प्रोसेस नहीं होता। अ लेयर ऑफ अनदर मेटल इज डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल ऑब्जेक्ट बीइंग प्रोटेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और एक और होता है अभिगैल्वेनाइजेशन। सिमिलर वे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम एक के ऊपर दूसरी की लेयर बना देते हैं। सपोज ये मैटर है, उसके ऊपर एक और लेयर लगा देना, तो प्लेटिंग टाइप की कर देना, उस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ मिक्सिंग सम अदर मेटल और नॉन मेटल, मिक्सिंग सम अदर मेटल और नॉन मेटल विद द मेटल बीइंग प्रोटेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड अलॉय। अब क्या करना है, एक मेटल के साथ दूसरे मेटल को मिक्स कर देना, एक मेटल के साथ दूसरे मेटल को क्या कर देना, मिक्स कर देना, क्या कहलाती है, अलॉय। क्या कहलाती है, अलॉय। प्रोसेस को बोला जाता है अलॉय। उसके बाद अपन पढ़ेंगे अबाउट द अलॉयज, उसके बाद पढ़ेंगे अपन द अलॉयज। द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विथ नॉन मेटल टू गिव अ स्ट्रेंथ टू प्रिवेंट करोजन, ठीक है। नॉन मेटल को क्या करना, उसको स्ट्रेंथ देना, ठीक है ना, उनको ताकत देना कि वो लंबे समय तक क्या कर सके, रह सके, ठीक है ना, लंबे समय तक रह सके। एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है ना। जो एलॉय है वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, किसका, मेटल और नॉन मेटल का। जो यूटेंसिल्स आते हैं अपने घर में, ठीक है, जो यूटेंसिल्स आते हैं वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो एलॉय। एलॉय आर यूजुअली वेरी हार्ड, ठीक है, जो एलॉय है वो क्या है, बहुत सारे हार्ड रहते हैं। कार्बन व्हेन एडेड विथ आयरन, कार्बन क्या होता है, जब ऐड होता है किसके साथ, आयरन, इंक्रीज द हार्डनेस, ओके, इंक्रीज द हार्डनेस मैनीफोल्ड, प्रोड्यूसिंग स्टील। स्टील जो होती है वो बहुत सारी जगह यूज होता है, जो स्टील है वो बहुत सारी जगह यूज होता है, शिप्स में, ब्रिजेस में, सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर बिल्डिंग्स एंड व्हीकल्स ऑल्सो। एंड अलॉय आर यूजुअली रेसिस्टेंस टू करोजन, जो अलॉय रहते हैं वो क्या होते हैं, रेसिस्टेंस रहते हैं, उसमें तो जंग कम लगती है, ठीक है ना, देयर आर द लेस चांसेस टू बी गेट करोजन। सो एन अलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल, ठीक है, आयरन, क्रोमियम एंड निकल, इन तीनों चीजों को जब जोड़ते हैं तो कौन सा बनता है, स्टेनलेस स्टील, ओके, व्हिच इज यूज्ड टू मेक अ यूटेंसिल्स। आपके घर में बर्तन आते हैं वो स्टेनलेस स्टील के रहते हैं। आफ्टर दैट alloy have very high tensile structure, strength. For example, an alloy of iron and chromium form chrome steel. Chrome steel because of high tensile steel used for making cutting tools and axes, ठीक है ना। जो क्या होते हैं, जो ये टूल्स बनते हैं, ओके, टूल्स मीन्स आपके हो गया, कटिंग टूल्स हो गए, ये सारे, उनमें भी क्या होता है, अलॉय को यूज किया जाता है। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ओके। और इसमें भी जो अलॉय है अलग अलग जगह होता है, जैसे
सिल्वर है, इन दोनों को मिक्स करते हैं तो डेंटल फिलिंग के लिए यूज किया जाता है। आफ्टर जैसे ब्रास है, ठीक है ना। अलॉय कौन सा है, ब्रास है, ब्रास के मेटल इन अलॉय, कॉपर और जिंक तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए यूज करते हैं। आफ्टर दैट ब्रोंज, कॉपर और टिन तो कोन, स्टैच्यू एंड मेटल्स के लिए यूज किया जाता है। ब्रोंज, कॉपर एंड टिन तो जो मेडल्स बनते हैं, स्टैच्यू बनते हैं, कोन्स बनते हैं, वहाँ यूज होता है। इसी करके ये जो मेटल्स इन एलॉय है वो अलग अलग चीज़ों में इनको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ना। यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल का ये फिर इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, और उसके बाद अपन ने क्या कर लिया, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। नाउ वी विल स्टडी वेयर दे आर यूज्ड। तो फर्स्ट वी विल स्टडी यूज ऑफ मेटल। मेटल, जिंक इज यूज्ड इन galvanizing, putting a coat iron to prevent it from rusting। ठीक है ना। जो जिंक है उसको कहाँ यूज किया जाता है, आयरन के ऊपर लेयर बनाने में, जिस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो क्या होता है, वो आयरन को रस्टिंग से, जंग लगने से बचाता है। आफ्टर दैट आयरन इज यूज्ड एज द मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन ब्रिज। ओके, आयरन इज यूज्ड मेन, जो आपकी कोई भी चीज का बेस स्ट्रॉन्ग रखा जाता है तो आयरन को यूज किया जाता है। द अलॉय ऑफ आयरन फ्रॉम स्टेनलेस स्टील इज यूज्ड। ठीक है ना। द अलॉय ऑफ आयरन, आयरन के साथ मिक्स करके इसको बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील को, that are used in our utensils. Okay, various kind of utensils. Then tin is used for making foils, soldering, coating to prevent corrosion को use किया जाता है। After that, lead is used for making water pipe, batteries, pigments, etc. Mercury is used in thermometer. Copper is widely used for making electrical wires and cables। ठीक है ना। जो मर्करी है, जो आपका थर्मोमीटर आता है उसमें मर्करी को यूज करते हैं। कॉपर जो आता है वो इलेक्ट्रिकल वायर है, वहाँ यूज किया जाता है। सब रेडियोएक्टिव मेटल्स सच एज यूरेनियम एंड प्लूटोनियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आल्सो। ओके, फॉर जनरेटिंग एनर्जी को जनरेट करने के लिए भी इनको यूज किया जाता है ना। यूजेस ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर लाइफ। वी यूज अ oxygen. Okay, we use a hydrogen, we use a oxygen used by living thing. Carbon is used as a fuel and for making electrodes। ठीक है ना। कार्बन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोड। आयोडीन इज यूज्ड फॉर प्रिवेंट थायराइड। ठीक है ना। एंटीसिपेट मतलब वो जो एंटीबायोटिक्स, उसमें भी क्या होता है, आयोडीन को यूज किया जाता है अपन को जो थायराइड होती है ना उसको कंट्रोल करने के लिए। हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग अमोनिया गैस, तो फर्टिलाइजर बनाने के लिए। ठीक है ना। जो अपन फर्टिलाइजर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था तो उसमें क्या यूज किया जाता है, हाइड्रोजन को, जिससे अमोनिया गैस बन सके। क्लोराइन इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर प्यूरिफाइड। ठीक है, प्यूरिफाई वाटर इन द फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस होता है क्रैकर्स बनाने में यूज किया जाता है। सल्फर इज यूज्ड, ओके, ब्रोन इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्किन ऑर्नामेंट्स। जो ये स्किन ऑर्नामेंट्स रहते हैं, ऐसे करके ये सारे बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स रहते हैं जिनको अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। So in this chapter we have covered the things. First one, physical properties of metal and non-metal. Second, chemical properties of metal and non-metal, and after that corrosion of metal, and then how to prevent from corrosion, alloys and uses of alloys, and uses of metal and non-metal. So these things we have covered in this chapter. Thank you.